Assalamualaikum. Welcome again back to our YouTube channel. Today we are going to discuss complete HEC use at pre-medical past paper test. इस टेस्ट में complete MCQs में biophysics, chemistry, verbal reasoning, quantitative reasoning and essay वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा. So let's start our video. MCQs number 1 है biology का. Osmosis the movement of water from highest fluid concentration to lowest fluid concentration, lowest fluid concentration to highest fluid concentration, equal concentration on both sides or none of these. Basically here the correct option is from highest fluid concentration to lowest fluid concentration. नहीं ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट में भी इसको करेक्ट किया हो. So lowest fluid concentration to highest fluid concentration is the correct option क्योंकि कह सकते हैं कि lowest fluid concentration यहाँ पे होगी lowest fluid more matter वहाँ पे present होगा. So the best and correct option is here available is basically B. So B is the right option, that lowest fluid concentration to the highest fluid concentration. Now the second MCQ is basically the basic unit of heredity is here a gene. A gene is basically you can say that a gene is a segment of DNA that determine a rate. यानी कि एक ऐसा segment है जो of DNA का जो determine करता है rate को, and the basic unit of heredity is the gene. So the correct option is the C. Now the third MCQ is DNA replication occur during which phase of the cell cycle? G1, S phase, G2 phase or M phase. So here the correct option is the S phase. जो हमारे पास DNA replication occur होती है ये S phase के अंदर हमारे पास occur हो रही होती है. So B is the correct option. Now the fourth MCQ is the functional unit of the kidneys. The functional unit हमें पता है maximum जो हमारा blood या फिर further जितना भी filtration का process करता है for making a urine या for formation of urine में, and blood की filter के बाद urine form हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास उसके लिए kidney है, and kidney की जो functional unit है वो हमारे पास होती है nephron. So यहाँ B is the correct option. Now the fifth MCQ is insulin is secreted by thyroid gland, adrenal gland, pancreas या फिर pituitary gland. So the option is basically C, pancreas. pancreas हमारे पास है, इसमें हमारे अल्फा बीटा सेल होते हैं. जो बीटा सेल है ये इंसुलिन रिलीज करते हैं और जो अल्फा सेल है इसमें ग्लूकागॉन. So here the correct answer is the pancreas. Now the sixth MCQs, which vitamin help in blood clotting. So कौन सा ऐसा विटामिन है जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट फैक्टर के अंदर? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के एंड विटामिन डी. 6 MCQs के अंदर सी इज आई थिंक सो करेक्ट ऑप्शन विटामिन के. एंड अदर ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं कि जिससे यहाँ पे डिफरेंट इनकी फॉर्मेशन होती है विटामिन में, लेकिन विटामिन के जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को. सो राइट ऑप्शन इज द सी. Now the seventh MCQ is the process by which the plant lose water through leaf is called. ऐसा प्रोसेस में प्लांट लूज करते हैं हमने वाटर को थ्रू लीव्स इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन है जिनमें प्लांट लूज करने के वाटर को थ्रू देयर लीफ के, एंड अनदर ये फिर एवोपरेट फ्रॉम स्टोमेटा इन लीव्स के अंदर वाटर एवोपरेट होगा. लेकिन अगर गुटेशन की होगी तब हम गुटेशन को करेंगे जब वो अपने एजेस से या फिर इस तरह से अपने टिप से जब उसकी ट्रांसपायरेशन हो रही है फ्रॉम एजेस एज ऐसे जब एवोपरेशन वगैरह हो रही होगी तो फिर हम यहाँ पे इसको कोटेशन मार्क करेंगे. 8 MCQs क्या होगा? विच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. कौन से पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए? कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल या फिर एंथोकाइनिन. तो बेसिकली हियर द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है जो कि पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को फॉर द किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. हियर द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द 9th MCQs. Movement of food in plant occur through xylem, phloem, stomata या root hairs. तो बेसिकली इन 9 के अंदर हम कहते हैं आपके पास बेसिकली phloem इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि हम कह रहे हैं जैसे कि इसने बोला कि आपके पास फॉर फूड के लिए है, बट फॉर वाटर के लिए हम इसको xylem वाटर के लिए होता है. तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली बी, बट दिस xylem इज फॉर वाटर. Which of the following is a plant hormone? Insulin, auxin, glucagon, thyroxine. Basically the correct option is the B, auxin. And here what is the working of auxin? Auxin basically यहाँ पे क्या करता है जी? रेगुलेशन के तौर पे हेल्प आउट करता है. रेगुलेशन करेगा हमारे पास आपके पास यहाँ पे जितने भी आपके पास यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ और उनकी सेल एलोंगेशन के अंदर या रेगुलेट करता है ग्रोथ वगैरह को. 11 द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड. जो बायोटिक कंपोनेंट है ऑफ द इकोसिस्टम के अंदर एक होता है बायोटिक एंड वन इज द यहाँ पे सबसे पहले मैं को डिफरेंट कर दूँ कि एक होता है बायोटिक और अनदर कंपोनेंट इसके लिए हमारे पास एक होता है एबायोटिक. एक बायोटिक जो है हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एक तरीके से लिविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. सो फॉर द लिविंग के लिए जो बायोटिक रिप्रेजेंटेशन है किस यहाँ पे आपके पास इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है लिविंग के लिए. तो लिविंग हम यहाँ पे जो मार्क करेंगे वो बस प्लांट एंड एनिमल इज सी इज द राइट ऑप्शन फॉर इट. C is the best option. 12. The study of fungi is called.
सो द स्टडी फंजाई में हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी, zoology, बॉटनी या वायरोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इज फॉर द माइकोलॉजी, बी इज द राइट ऑप्शन। Now the 13 MCQs. Which disease is caused by the deficiency of vitamin C? Vitamin C से कौन सी deficiency cause होती है? Rickets, scurvy, red blindness or beriberi? So here the right option is basically हमारे पास होगा night blindness जो या फिर scurvy. Scurvy basically what is the disease means scurvy? So इसका मतलब है हमारे पास gums वगैरह का basically आपके पास जो भी gums होती हैं उनका या फिर इन चीज़ों का खराब हो जाना। Like its meaning basically weak gums and bleeding. Weak gums and bleeding sooner. And the rickets are caused by the vitamin D, and night blindness is caused by the basically vitamin A, and the beriberi disease is caused by the B1. So another MCQ is basically that the shape of the vibrochlora is spherical, rod shaped, comma shaped, or spiral shaped. So correct option is the basically comma shape. The first antibiotic discovered was streptomycin, penicillin, tetracycline. So basically here the most common you can say antibiotic is the first discovered in 1928. Alexander is the Fleming Alexander is the penicillin. Also mention the date 1928. 16. The cell theory was proposed by Sheldon Schwann, Weston Crick, Darwin and Valence, or Hooke and the Leeuwenhoek. Basically, it's a common excuse. Sheldon and Schwann is the correct option A. Which molecule carry genetic information from DNA to ribosomes? Basically, messenger RNA carry the informations, genetic information from DNA to ribosomes. So here mRNA is the correct option B. Messenger RNA. The complementary base of the adenine is in RNAs. In RNA के अंदर कहते हैं complementary base of adenine क्या है? So thymine, uracil, cytosine and adenine. In DNA के अंदर हम बात करें in DNA के अंदर कहते हैं हम जैसे कि करेंगे adenine and thymine and guanine and cytosine. But in RNA के अंदर ये जो thymine है ये replace हो जाता है by the uracil. So right option is B, uracil. The most abundant element in the living organism is. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बोलेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन बी 65% है एंड सेकंड मोस्ट होता है वो आपके पास कार्बन है 20 आई थिंक सो बट कार्बन इज द सेकंड मोस्ट। फर्स्ट इज द ऑक्सीजन 65% एंड सेकंड वन इज द सेकंड आपके पास जो मोस्ट है वो कार्बन है। The smallest blood vessels are that are the basically capillaries. So the smallest आपके पास जो blood vessels पाई जाती हैं that are capillaries. Now it's time to solve the physics portion. So for 21 MCQ the slope of the velocity time graph gives. So हमारे पास जो velocity time graph है वो क्या give करता है? Distance, displacement, acceleration और speed. तो here the correct option is basically C, acceleration. So acceleration किसके equal होता है हमारे पास? हम कहते हैं ये acceleration is equal to किसमें होगा? Velocity over divided by हमारे पास time के equal होगा. So the next MCQ is 22 sorry. Temperature is a measure of. Temperature किस measure है? Basically हम क्या कहते हैं किसको measure kinetic energy of the particle के लिए हम इसको कहते हैं तो B is the correct option. So now there are basically 23 MCQs. The SI unit of the heat is, what is the SI unit of heat? So here the correct option is basically joule. B is the correct option. So now the 24 के अंदर basically कह रहा है temperature with the Celsius and Fahrenheit scales are equal is -22 degree, -40 degree, -273 degree or 0 degree. Both say students 0 to -273, but the correct option is here the -40 degree, the degree temperature at which the Celsius and the Fahrenheit are scales are basically equals. 25. The time period of the wave is the reciprocal of. जो time period of wave है वो किसका reciprocal है? सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो time period and frequency है उसमें इन्वर्सलेशन होते हैं। जो time period is equal to time period यहाँ पे हम कह सकते हैं time period होते हैं यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है frequency के। जब पे frequency हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है time period के।
सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली 25 के अंदर ए फ्रीक्वेंसी। ट्वेंटी सिक्स द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन किसके ऊपर करती है? तो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड करती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। Now the 27 MCQ is echo is heard when the reflected sound reaches the ear after at least, यानी कि echo जो है वो heard होगी, हमें सुनाई देगी, when reflect करेगी, sound की reflection होगी, जाएगी वो वापस आएगी, reach करेगी the ear after at least कितने के ऊपर? तो यहाँ पे जो correct option इसका हमारे पास बनता है 27 के अंदर 0.1 सेकंड। Most important MCQs द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ द फोर्स है। सबसे पहले फोर्स किसको बोलते हैं? F इज इक्वल टू बेसिकली m है, और अगर F इज इक्वल टू m से अगर हम डेरिवेशन करें तो यहाँ से हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन निकलता है MLT -1 विच इज द बेसिकली करेक्ट डायमेंशन ऑफ दिस। यू नीड टू सॉल्व इट। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? तो व्हाट इज द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम बेसिकली हम कहते हैं लेंथ की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की हमारे पास यूनिट होती है और उसकी वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली A. Now the 30 the least count of the vernier caliper is usually vernier caliper का जो least count है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। Which one is the scalar quantity? Force, velocity, work या basically acceleration. So here the acceleration is a vector quantity, velocity भी vector quantity है, force भी vector quantity है। तो जो हमारे पास work है ये हमारे पास scalar quantity है। तो सिर्फ only work जो है ये हमारे पास scalar quantity है, and all other ज़्यादा basically क्या है वो हमारे पास vector quantities हैं। जो स्केलर वो होती हैं जिनका हमारे पास कहते हैं आपके पास, यानी कि जैसे कि हम कहेंगे कि अंदर से मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, दूसरे के अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड दोनों पाई जाती हैं। So this is the difference of the scalar and vector quantities. So now we are going to complete the chemistry portion. The pH of 0.001 mole HCl is approximately equal to, we know that pH is equal to negative log of additional concentration. So here you can know negative log, when we put the value negative log to 0.001, and the answer will be 3. You can also solve it. The correct option is A. Now the next is 33. 33 में कहते हैं if the pressure of a gas is double at a constant pressure and the volume become, ये यहाँ पे basically Boyle's law फॉलो हो रहा है। So Boyle's law के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के साथ। अगर प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम डबल होगा। ये प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस को डबल करोगे तो वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा आपके पास हाफ। तो बेसिकली हम यहाँ पे सी इज करेक्ट ऑप्शन, वॉल्यूम हाफ होगा। सो 33 सी 33 में आएगा। 34 में इन इरेक्शन डबलिंग ए डबल द रेट, डबलिंग बी क्वाड्रपल्स द रेट, मतलब 4 टाइम की जो ना, एंड मीन्स आपके पास यानी कि 4 टाइम बढ़ना, यहाँ पे डबल करना, द रेट लॉ क्या होगा बेसिकली। सो है आंसर कहता है आपके पास अगर हम इसको बनाएं, यानी कि यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे कि ए का आपके पास बेसिकली स्केयर है, यहाँ पे हम क्यों कर बोल दें कि ए का स्केयर। तो बेसिकली व्हेन वी राइट द क्वेश्चन रेट इज इक्वल टू के ए कस ए इंटू बी का स्केयर। जब यहाँ पे ये बी यानी कि ए को हम एक डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, लेकिन बी को डबल करेंगे तो यानी कि स्केयर, तो 4 टाइम इंक्रीज आपके पास आएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द बी। Now the next is the 35 which are following oxide is amphoteric. Most common जो बुक का क्वेश्चन भी कंप्लीट है कि हमारे पास कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी। द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास फ्लोरीन होता है इन द पोलिंग स्केल के अंदर, जो कि मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन में हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0, और जो सबसे हमारे पास जो लीस्ट वन होता है हमारे पास उसको बोलते हैं हमारे पास सीजियम, जो कि हमारे पास अगली मेटल का लास्ट एलिमेंट के अंदर आता है सीजियम, और हाईली रिएक्टिव, और इसको हम बोलते हैं आई थिंक 0.7 वैल्यू होती है। Which of the following is a paramagnetic? What is the paramagnetic? Paramagnetic उनको को बोलते हैं जिसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स अगर हमारे पास एस के अंदर 2 आ रहे हैं तो उसके अंदर जब एक होगा तो दिस इज द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 हैं तो जब एक को हम बोलते हैं तो अनपेयर है, तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे 37 ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो बेसिकली 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली ए 37। 38 के अंदर द आइयूपिक नेम ऑफ CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है हम लोगों ने अल्केन, डबल बॉन्ड होती है अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होती है हमारे पास अल्काइन। तो ये द डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको अल्कीन को, ईन को बेसिकली शो करेगा। एंड देन वी कैन से ये जो करेक्ट हमारे पास इसकी अगर बॉन्ड नंबरिंग की जो बात करें कहाँ से स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब है तो यहाँ 1 2 फिर 3 एंड देन 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 ब्यूट ईन होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 इन बेंजीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3 sp2 sp या dsp2। तो हमारे पास जो बेंजीन होता है यहाँ पे एक रिंग फॉर्म के अंदर बेंजीन पाए जाते हैं। बेंजीन आर फॉर्म्ड इन द रिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो 6 इसके कॉर्नर में मौजूद टोटल इसके अंदर जो हमारे पास बेंजीन के अंदर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, तो वो कहता है आपके पास बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पाई जाती है वो sp2 है। बी इज द राइट ऑप्शन। 40 द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो बेसिकली इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, यानी कि यहाँ पे E इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास होता है Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो हेयर H इज द बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट, C द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा वेवलेंथ है। और बेसिकली जो हमें गिवन भी है तो इसके लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो इसका ये अगर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं E इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 इंटू 10⁻। अब जो नैनो है, नैनो होता है 10⁻9 -9 इसका लिखा जाएगा। सो 10 आपके पास यहाँ पे इसको -9 इसकी वैल्यू लिखेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हम लोगों ने इसको इसके बाद जो क्वेश्चन का हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज द बेसिकली योर आंसर इज 450 किलोजूल पर मोल। So B is the correct answer. Now we are going to solve the 41 MCQs. The oxidation number of the sulfur in H2SO4. अब the H2 and SO4 हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब सल्फर हमने इसमें फाइंड करना है विच इज रिटन हेयर, आपको रिप्रेजेंट नजर आ रहा होगा यहाँ पे एस यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन की हमारे पास होती है +1 है एंड ऑक्सीजन की होती है -2। हेयर ऑक्सीजन की क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस आपके पास 2 है और हाइड्रोजन की हमारे पास है +1। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सबसे पहले 2 × 1 + x + 4 × -2 = 0। अब इसके बाद इसको मैं लिखूँ तो हमारे पास हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। सो x - 6 = 0 एंड देन x = आपके पास यहाँ पे 6। दिस इज बेसिकली योर आंसर। सो हेयर +6 कौन सा है हमारे पास यहाँ पे B, तो B इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट हम 42 के अंदर बेसिकली हमें बोल रहा है कि कहते हैं आपके पास यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड करनी है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, जिसमें आपको कहता है सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। KSP की वैल्यू उसने दे दी है आपके पास = 1.0 न्यूटन -10। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूले बेसिकली यूज करेंगे। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि KSP जो होता है KSP इज इक्वल टू S का स्केयर। सो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ S होता है, S डॉट हमारे पास S मल्टीप्लाई बाय S। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बेसिकली किस तरीके से कि S जो है हमारे पास हम लिखेंगे कि S इज इक्वल टू √ KSP विच इज इक्वल टू बेसिकली हम लिखेंगे अपनी वैल्यू पुट करेंगे KSP वाली √1 × 10⁻⁻10। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो S की वैल्यू है वो आती है 10 हमारे पास -5m। सो हियर जो करेक्ट ऑप्शन इज योर मोलर मीनिंग। और यहाँ पे 42 के अंदर हम लोग पुट करेंगे बेसिकली A। फॉर द बेसिक मैथमेटिक्स मीन अर्थमेटिक पोर्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग। सो द 43 MCQs इफ 20% जो भी परसेंट आ जाता है मीन्स वो नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 100 इट्स मीन। सो हियर दैट इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 50, कहते हैं अगर 20% ऑफ अ नंबर 50 है तो व्हाट इज द नंबर क्या है, 100 150 200 और 250। सोल्यूशन कैसे होगा देखिए, 250 है सबसे पहले इसका सिंपल सोल्यूशन इस तरह से होगा कि 250 मीन्स आपने हमें करना है सॉरी 20% है तो 20 डिवाइडेड बाय 100। जब 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो साथ में लिखना है x विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद हम लोगों ने इसको करना ही है कि नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.20 x विच इज इक्वल टू 50। और जब हम इसको x को इक्वल लेके आएंगे इस तरफ लेके आएंगे देन हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई हम इसको कर देंगे 0.20 विच इज इक्वल टू 250। सो 250 इज द बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इस MCQs का इसको सॉल्व करने का मेथड आपके सामने है। सो हियर 250 इज द बेसिकली करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ द नेक्स्ट MCQs
44% इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 300 मीन्स 250 से वो 300 तक गए हैं, तो मतलब 50 का डिफरेंस कितना है 250, मतलब 300 में से अगर 250 को माइनस कर दिया जाए, 300 में से अगर मैं 250 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है 50 का। सो 50 मीन्स इसका डिफरेंस आया है। सो अब इसका मतलब कि 15%, 18%, 20% या 25% इसमें से कोई एक इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमको इसको फॉलो करने के लिए जो 50 हमारे पास डिफरेंस है उस 50 को हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ। उसकी ओरिजिनल डिफरेंस जो आया था उसको इस ओरिजिनल वैल्यू के साथ हम लोगों ने माइनस करना है, विच इज़ द 250 मैंने क्या दिया 250, लोगों ने ज़रा सा इसको गौर से करें 250, और अब यहाँ पे 250 है तो इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 100 के साथ। जब इसको मैं 250 डिवाइड बाई इसको 100 के साथ हम करते हैं लेट्स सपोज, तो इसका आंसर एक मिनट वेट अ मिनट, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, उसको सॉल्व करेंगे। तो 50 डिवाइड बाई 25 को किस तरह सॉल्व करें, सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो को हम इससे कैंसिल करेंगे, तो ये 250 था 25, ये 250 को हम लोग इससे कैंसिल कर सकते हैं, 25 है 1 एंड 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और देन विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, और ये 10 बेसिकली बचा हुआ तो 2 इंटू 10 आ जाएगा। सो ये 2 10 आपके पास यहाँ पे 20% इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन जो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डैट इज द बेसिकली सी। Now the next one 45 MCQ के अंदर कहता है हमारे पास इफ x square is equal to 144 and x is greater than 0। सो हेयर ग्रेटर और लेस का ऑप्शन देख लें। जो बेसिकली ग्रेटर है, जो ये वाली साइन है ये होती है हमारे पास फॉर ग्रेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दिस फॉर द लेसर के लिए होती है। सो ये कह रहा है एक्स जो है ग्रेटर है 0 से, तो देन अदर एक्स मतलब एक एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड अदर एक्स इज गुड वट। सो एक्स का स्केयर इसने मिला हुआ है कि आपके पास किसकी इक्वल, आपने वो चीज़ रिप्रेजेंट करके बतानी है। सो एक्स का स्केयर किसके इक्वल है, कहता है हम इक्वेशन बनाएंगे 144 कह रहे हैं। सो जब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम एक्स को इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास √144 ले लेंगे। जब √144 किसका यानी कि 12 किसके स्केयर है, यानी कि 144 आता है 12 के स्केयर। सो एक्स इज इक्वल टू बेसिकली 12, दैट इज आवर राइट आंसर। नाउ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी। 48 के ऊपर अगर हम जाते हैं, इफ 4 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ अ नंबर इज 16 देन द नंबर इज 24, 32, 36 और 40। कहते हैं 4 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ अ नंबर इज, तो इसको इक्वेशन के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें तो कहता है ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 9 एंड देन जो इसका नंबर है बेसिकली ऑफ अ नंबर, तो नंबर मीन्स हम इसको एन लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कहता है 16 के इक्वल है। सो 4 को अगर एन कर दें डिवाइडेड बाई हमारे पास वो 4n विच इज इक्वल टू डिवाइडेड नहीं कहते 4n अगर हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 4n इज इक्वल टू 9 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 9 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 के साथ इज इक्वल टू 16 इंटू 9 एंड देन 16 इंटू 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो 4 है इसको भी हमें जैसे अलग कर लेते हैं। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 एंड 4 4 16। सो हेयर वी कैन राइट n इज इक्वल टू 4 इंटू 9 और 4 इंटू 9 जो होता है हमारे पास हो जाएगा 36। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास 36, दैट इज द बेसिकली सी इज द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज 47 15% ऑफ एक्स इक्वल 45 फाइंड एक्स। कहते हैं 15% ऑफ द एक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास 45 है। सो फाइंड कहते हैं आप लोग किस चीज़ को करो, एक्स को फाइंड करो। सो 200 250 300 या 350 विच वन इज द करेक्ट। तो सबसे पहले परसेंटेज आ गई है तो मीन्स को हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100 15 डिवाइड बाई 100 देन एक्स विच इज इक्वल टू 45। इक्वेशन हमने बना ली मीन्स 45 अपनी जगह आ गया, ये वाला एक्स इस जगह पे आ गया एंड देन 15% को हम लोग ओपन करके लिख लिया। सो न उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको मैं मान रखता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 100 एक्स इक्वल टू 45। सो हेयर अगर इसको हम लोग मेंशन करके लिखें कि एक्स को हम फाइंड करना है इक्वल टू 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 15 हो गया तो 15 1 जार हो गया, 15 3 जार आई थिंक सो, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 300, यानी कि ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 300 आपका करेक्ट ऑप्शन बनाएगा। सो है द करेक्ट ऑप्शन इज द बेसिकली सी है इस ऑप्शन 47 MCQs का। सो ये सॉल्व आप देख सकते हैं तरीका मेथोडोलॉजी देखें। एक एक्स को जब हम लोगों ने फाइंड करना था, यहाँ पे ये एक्स को हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास था 45।
जो कि इक्वेशन का हमें ऑलरेडी गिवन है और एक्स उसने ऑलरेडी बताया हुआ था फाइंड करना है। जब हम एक्स को इधर लाएंगे तो यहाँ पे जो 100 है ये नीचे हो रहा था डिवाइड, जो किसी भी चीज़ के नीचे थी वो हमारे पास होती है डिवीजन की फॉर्म में लिखती है लाइक 1/2। सो ये 2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 1 मल्टीप्लाई की फॉर्म है। जब 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो कोई चीज़ नीचे डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, और ऊपर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है और नीचे आकर डिवाइड हो जाती है। सो इसको आपस में इन्वर्स फॉर्म में वर्क होता है। सो नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द 48 सेम एमसीक्यूज है। वैसे तो आप लोग खुद करो इनको, लेकिन बट आई विल बी ट्राई माई बेस्ट कि 30% वही चीज़ है, परसेंट है, यानी कि मीन 30 डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास 100 की फॉर्म आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास यानी कि 450 इज इक्वल टू आप लोगों ने फाइंड करना है इस चीज़ को, तो आई विल फाइंड। सो व्हेन वी सॉल्व इट 30 डिवाइड बाई 100, तो इसका जो हमारे पास करेक्टली आंसर आएगा, वेट अ मिनट, तो आंसर जो है इसका 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 135। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली हियर बी। Now the next one goes 49 simple interest and compound से, there are two different things। simple interest होता है बेसिकली यहाँ पे हम कहते हैं कि सेम रहते हैं फॉर अ ईयर के लिए, बेसिकली सेम फॉर अ ईयर, ये हमारे पास होते हैं सेम रहते हैं फॉर ईयर के लिए। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जबकि पास हम कहते हैं रहते हैं कि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल द ईयर डिफरेंट रहते हैं, ऑल ईयर जो हमारे पास चेंज होता है ये पर डिफरेंट रहता है। नाउ द अनदर डिफरेंस इज बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हम कहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो वैसे हम कहते हैं लार्जर या ग्रेटर होता है या बिगर होता है दैन द सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास। नाउ इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जिनके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली अगर इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है दैन विल वी हैव अ फार्मूला फॉर इट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 100। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू डालें तो 7500 डिवाइडेड बाय 100 एंड 7500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू जो हमारे पास का करेक्ट आंसर बनता है वो है 600 एंड द करेक्ट आंसर इज बेसिकली बी। Now the another is a 50 compound interest का फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द हर 1250 एट 8%, कहते हैं 1200 ऑन द 8% के ऊपर एंड एनुअली फॉर अ 2 ईयर विच इज इक्वल टू। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर इधर फार्मूला डाला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू पावर एन। जब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1250 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। नाउ अब इसको इसकी जो पावर हमारे पास फॉर द बेसिकली एन है तो एन यहाँ पे आपके पास के फॉर किसके लिए 2 ईयर्स, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 डाल देंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है दैट इज द बेसिकली 208। सो इज द राइट ऑप्शन इज द बेसिकली बी। मैं इस फॉर्मूले को अगेन लिख देता हूँ दोबारा। फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग लिखेंगे प्राइस इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू पावर एन। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 208 विच इज द राइट ऑप्शन इज द बी। नाउ द अनदर एमसीक्यूज बेसिकली जो हम इसको सॉल्व करने के लिए दैट इज द बेसिकली अलजेब्रा एंड फंक्शंस। नाउ इट्स द नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्व फॉर x रेशियो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। सो इसको सिंपल करना है, सिंपलीफाई में जितना सिंपलीफाई करके उसको सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकालना है जी 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। पहले इसको अगर हम लिखें 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 देन 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, यहाँ पे माइनस था, जब ये इक्वल के दूसरे आ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। देन द 2x इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है दैट इज बेसिकली 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 1 2 2 6 12। आंसर इज द बेसिकली 6 राइट ऑप्शन जो कि हमारे पास यहाँ पे बनेगा बी, सॉरी सी। Correct option is the C. Now another is 52. Simplify x square minus 9 divided by x minus 3. So how can we solve it? सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है x का स्केयर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इंटू, अगर इसको हम लोग इस तरह सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस x प्लस 3
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब हम इसको कट कर सकते हैं, एक एक्स प्लस 3 को एक एक्स माइनस 3 के साथ हम इसको कैंसिल कर लें। देन हमारे पास पीछे जो आंसर इसका बचेगा वो बचेगा इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो हेयर राइट करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली बी। Now the next is the 53. Now next हम इसको is the 53. If 2x plus 3 is equal to 11, what is the 4x plus 6? सबसे पहले हम लोग इधर फाइंड करेंगे, इसमें यहाँ से x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है, देन उसकी x की वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर देना है इस वैल्यू के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अंदर। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा if 2x plus 3 is equal to 11, तो इसको हम करते हैं कि 2x plus 3 is equal to 1. So 2x is equal to 1, 2x is equal to 8. Now we can say here that x is equal to 8 divided by 2, which is equal to 4. 2 1 are 2, 2 2 are 2 4 are 8, 2 4 are 8. So here x is equal to 4. So 4 को हम लोगों ने पुट करना है now in this value. So इसको मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। तो हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो x इक्वल टू 4 थी। तो उसको अगर हम इसका गिवन कंडीशन के अंदर पुट करें 4 इंटू 4 प्लस हमारे पास 6 है, 4 4 16 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 22। द करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली सी। नाउ 54 सॉल्व x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू। सो है सबसे पहले हमारे पास कहते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें इस एक को इसके साथ, फिर इसको और फिर देन इसको इस x के साथ, देन 2 को 3 के साथ, तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट इज बेसिकली x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। नाउ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज द आंसर। यू कैन सी हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द बेसिकली A. नाउ 55 इन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। 55 इफ f इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 देन f इंटू 4 इक्वल टू। कहते हैं f बेसिकली यहाँ पे भी f इंटू एक्स की वैल्यू डाली हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें। तो 55 के अंदर हमने सबसे पहले इसको करना है कि 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड देन 2, अगर हम इसकी जगह x प्लस 1 है मीन्स यहाँ पे f की वैल्यू 4 को अगर हम x की 4 वैल्यू पुट करते हैं 4 1 4 2 8 प्लस 1 हो जाएगा, देन 8 प्लस 1 एंड देन वेयर x इक्वल टू 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9। सो करेक्ट आंसर इज द सी, राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट 56 सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो एक्स का स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिंपल अगर बेसिक सीखें तो 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 का क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे जो है जो कि मैं मेंशन करूँगा। इट्स योर टॉक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, solve this question. Homework now use quadratic equation x is equal to minus b plus minus under root b का square minus 4ac divided by 2a. Now this is the basically formula of the quadratic equation. Quadratic equation का ये formula है हमारे पास, quadratic फॉर्मूला हमारे पास है। इसके थ्रू होगा, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब इस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे गिवन लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको ए बी गिवन है या फिर यहाँ पे जहाँ ए गिवन है या सी गिवन है, ये वैल्यूज़ कौन सी होंगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को मेंशन करूँगा। यहाँ पे दिस एक्स इज बेसिकली ये ए है, दिस माइनस यानी कि आपके पास यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे 10 जो है ये आपका सी है। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है ये जो बेसिकली 10 मतलब सी प्लस सी है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस माइनस है तो यानी कि माइनस बी है, और ए जो है यहाँ पे आपके पास प्लस ए है। तो इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारा आंसर दो ऑप्शन में आएगा, मतलब एक्स में दो वैल्यूज़ आएंगी यानी कि एक्स इक्वल टू एंड देन अदर एक्स इक्वल टू एनीथिंग समथिंग। आपके पास यहाँ पे दो आंसर आएंगे, तो जो कि आंसर आना चाहिए वो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू 2 and 5। दिस इज द टुडे टॉपिक्स फॉर पास्ट MCQ पेपर्स for full practice for use at pre-medical students. Now in next video we will be discuss completely on about the pre-medical geometry portions and verbal English portions. So take care.